लीडिंग सिंबल का मतलब फ्रॉम द स्टार्ट। तो सफिक्स की डेफिनेशन क्या है? एनी स्ट्रिंग which is formed by deleting one or zero or more leading symbol from the string there. For example, if we remove d from the database, अब हमें क्या करना है? स्टार्ट से रिमूव करना है. अब if we remove d from database, the remaining part is from a t a b a s e. This is the called the suffix of database. When we remove d a t a data, then we have the part of the string remain, that is base. The base is a suffix of database. Another third part of the string. थोड़ा सा सेशन एंड हो गया था सर प्रीफिक्स के बाद। सफिक्स की डेफिनेशन में बता रहा था कि any string that formed by deleting zero or more leading symbols from the string. यानी अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में से स्टार्ट से जीरो कैरेक्टर रिमूव करें या जीरो से ज्यादा कैरेक्टर रिमूव करें और जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स या कैरेक्टर बचेंगे, that is our suffix of that string. If we remove data from the database, the base is called the suffix of database. If we remove man from the mankind, then we have the kind is basically a suffix of mankind. So another third part of the string is called the substring of string. Now the third part of a string is called the substring of a string. What is the substring of a string? Any formed by deleting zero or more prefix and slash or a suffix from a string. Any string formed by deleting zero or more prefix and or a suffix. यानी हम किसी भी स्ट्रिंग में से प्रीफिक्स को रिमूव कर दें और हम उसमें से सफिक्स को रिमूव कर दें, या तो हम प्रीफिक्स को हटा दें या सफिक्स को हटा दें, या कुछ पोर्शन हम प्रीफिक्स से उड़ा दें और कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हम सफिक्स से रिमूव कर दें. फॉर एग्जांपल डेटा बेस है हमारे पास स्ट्रिंग. इफ वी रिमूव da फ्रॉम for example, if we write here data, if we remove this da and we remove se, the part of the string remains taba. So taba is a substring of database. If we remove data, then we have the base. So base is itself is a suffix of database, also is a substring of database. If we remove like dat, and here we remove ase, so we have the part of the string that is ab. So ab is a substring of database here, and null string is considered as the substring of any string. तो null string की बात हमने की थी, जिसको हमने समेशन से शो किया था. तो null string is considered as the substring of any string. So null string is considered as the substring of any string. Another fourth part of that string is called the subsequence of a string. Subsequence of a string. And what is the definition of subsequence of a string? Any string formed by deleting zero or more prefix and slash or a suffix from a string, not necessarily contiguous symbol. Any string formed by deleting a prefix and or a suffix, not necessarily a contiguous symbol.
यानी अब यहाँ पे क्या है, सब स्ट्रिंग में और इसमें फर्क क्या है कि सब स्ट्रिंग में हमने जो रिमूव किया था वो कॉन्टिग्युअस होने थे। जिस जिस पार्ट को भी हमने प्रीफिक्स के पार्ट को उड़ाया या सफिक्स के कुछ पोर्शन को रिमूव किया वो कॉन्टिग्युअस होना शर्त था। तो जब हम रिमूव कर रहे हैं कॉन्टिग्युअस सिंबल तो जो बच रहा है वो भी कॉन्टिग्युअस है, जबकि सब सीक्वेंस में जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली कॉन्टिग्युअस, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर हो भी सकते हैं इसका मतलब है कि all substring is also a subsequence, all substring are also a subsequence of any string, but not all subsequence is a substring। तमाम सब सीक्वेंस को सब स्ट्रिंग नहीं कह सकते, तमाम सब स्ट्रिंग को हम सब सीक्वेंस कह सकते हैं। तो all substring is considered as a subsequence, but not all subsequence considered as a substring. For example, if we write here man kind, mankind. For example, if we remove like I can say if we remove m here, if we remove a here, if we remove k here, and if we remove n here, the remaining part is NID. So NID is considered as the subsequence of mankind. Clear? Yes, sir. Again we write. सर NID जो होगा वो सब सीक्वेंस भी तो होगा। I am talking about the subsequence right now. इस subsequence में contiguous होना शर्त नहीं है कि जो आप remove कर रहे हो वो contiguous नहीं हो, लेकिन contiguous हो भी सकते हैं। जब हो भी सकते हैं तो इसका मतलब वो substring भी कहला सकता है। For example, man जो है वो substring भी है mankind का, man prefix भी है mankind का, man subsequence भी है mankind का, kind suffix भी है mankind का, kind जो है वो सब स्ट्रिंग भी है मैनकाइंड का, और काइंड जो है वो सब सीक्वेंस भी है मैनकाइंड का। एंड फॉर एग्जांपल इफ वी रिमूव MA here and we remove ND from here, the remaining part is called the NKI, but NKI is a sub string of mankind and is also a subsequence of mankind. So NKI is considered as the substring of mankind, and it also a subsequence of mankind, because all substring is considered as a subsequence. But if we talk about the mankind and we talk about the A and for example AK and D. So AKD is only a subsequence of mankind. AKD is not the substring of mankind. Clear? जी सर क्लियर है। क्लियर है सर। मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रिपीट करा रहा था, बाकी इसको डिटेल में आप खुद देख लीजिएगा। नाउ वी हैव दी ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेज देयर। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशंस ऑन दी लैंग्वेज देयर, तो वी हैव 4 टाइप। वन इज कॉल्ड दी यूनियन। जब हम यूनियन लेते हैं किसी भी लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लैंग्वेज हैं, वन इज कॉल्ड L and another one is called M. If we have the L is considered as the language of alphabets and M is considered the language of digits, like from 0 to 9, and L is the language which contains the alphabet from A to Z there. So if we when we say that the L union M, so L union M contain any string which may be a part of the alphabet, which may be formed by alphabets or the string, or we can say that that also the string contained from a digit there. So L union M is have we comprising the strings of digit or as well as the strings of alphabet there. But this is the one operation there. Another
is called the concatenation of language. When we talk about the concatenation, so we have two things. One is the when L is concatenate with M, and when M is concatenate with L there. So LM is not equal to ML there, because when we concatenate the language with M, we say that LM contain only those strings which must start with an alphabet and then followed by a digit there. When we concatenate the L with M there, so we say that LM contain the language set having those string which must start with an alphabet, and that maybe that must end with the digit there. And when we say that M is concatenated with L there, so ML having the language set which comprise of those strings which must start with the digit and followed by an alphabet there. The third operation on the language is called the सर एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है जी जो ये कॉन्केटिनेशन वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया है, अगर तो LM स्ट्रिंग है यानी कि हमने स्टार्ट हमने अल्फाबेट से करनी है और एंड डिजिट पे करनी है, तो इसमें कंपलसरी है कि एंड डिजिट पे करनी है, वो सिर्फ खाली अल्फाबेट की स्ट्रिंग नहीं, हो मैं सकती? तो आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक हमारे पास अगर लैंग्वेज है जो कि L है और जिसमें अल्फाबेट्स हैं, तो डेफिनेटली उस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग बनेंगे वो भी अल्फाबेट्स के ही होंगे। और जो हमारे पास एक लैंग्वेज सेट है जो कि M है, जो कि डिजिट पे कंप्राइज कर रहा है। अब जब हम एक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं जो कि L यूनियन M पर है, तो L यूनियन M वाली लैंग्वेज में तो कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है, डिजिट वाले भी आ सकते हैं, अल्फाबेट वाले भी आ सकते हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम L M कॉन्कैटिनेशन के साथ वाली लैंग्वेज बना रहे हैं, तो वहां पे अब जब हमने L को फर्स्ट पे रखा है और M को बाद में रखा है, तो इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग परमिसिबल हैं, वो स्ट्रिंग अलाउएबल हैं जो कि अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे और डिजिट पर एंड होंगे। लाइक A0 आ सकता है, उसमें AB1 आ सकता है, AB9 आ सकता है, ABCD1 आ सकता है, इस तरह के आ सकते हैं। बट अगर हम ML के साथ कॉन्कैटिनेट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग्स आएंगे जो कि डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी वी स्टार्ट फ्रॉम, उसमें फिर A0 नहीं आ सकता, उसमें 0A आएगा, जिनका स्टार्ट होना डिजिट से जरूरी है और फिर एंड होना जो है, ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि कंडीशन आपकी किस तरह की है। जी सर, वो समझ में आ गया सर। मैं ये पूछी थी कि मतलब मतलब जो अल्फाबेट और डिजिट वाली है, जिसमें पहले अल्फाबेट लिखना है और फिर डिजिट लिखना है, उसमें लाजमी है कि डिजिट पर एंड करना है, वो सिर्फ अल्फाबेट नहीं लिख सकते? लाजमी नहीं, लाजमी है डिजिट पे एंड करना, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन है। बाकी सर जो यूनियन में आप फ्री हैं, यूनियन में आप शायद सिर्फ डिजिट वाले लिख लें, आप सिर्फ अल्फाबेट वाले लिख लें, उसमें आप फ्री हैं। अच्छा, अब नाउ द थर्ड, मिक्स भी लिख सकते हैं कि अल्फाबेट भी हो, फिर डिजिट हो, फिर अल्फाबेट हो? उसमें मिक्स भी लिख सकते हैं। सही है सर, ठीक, थैंक यू सर। Now the third property is called the the third operation, that is called the clean star. क्लीन स्टार को हम कैसे शो करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज पर अगर हम सुपरस्क्रिप्ट में स्टार लगा दें, तो दैट इज कॉल्ड दी, हमने कहा कि हमने इस लैंग्वेज पे क्लीन स्टार की ऑपरेशन चलानी। अब क्लीन स्टार क्या कह रहा है? क्लीन स्टार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्लीन स्टार और एक पॉजिटिव क्लोजर, ये आपको वरना कंफ्यूज करेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्लीन स्टार मींस यानी एल, यानी हमने एक लैंग्वेज देखें, एल एक नाम है लैंग्वेज का, वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लीन स्टार में हमने क्या कहा, हमने सुपरस्क्रिप्ट में स्टार लगाया। तो दैट मीन्स कि दिस लैंग्वेज कंटेन द स्ट्रिंग्स which have a length from 0 to infinite. यानी this language contain all those strings which have a length from 0 to infinite there.
And another fourth operation on the language is called the positive closure. Positive closure को हम क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लगाएंगे. तो positive closure means कि we have the string contained in this language having, sorry, in this we have a condition that the string at least have a length from 1 to infinite. So what is the difference between clean star and positive closure? That in clean star, the null string is there, but in positive closure we don't have the null string allowed there. Only difference between clean star and the positive closure कि clean star में आपके पास null भी आ सकता है और positive closure में null नहीं आ सकता. वहाँ condition है कि कम से कम string की length 1 होनी चाहिए up till infinite there. If we subtract the clean star positive closure, then we have only the null string is there. If we minus from L star minus L plus, and if we have two language, one is the L star and another one is the L plus, then we have, if we subtract that, so we have only the null string there. So important thing is that, for example, अगर हम किसी भी हम सेट पर जब क्लीन स्टार की ऑपरेशन रन करते हैं, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास सेट है ये अपने आप को रिपीट कर सकता है फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट टाइम. अगर फॉर एग्जांपल it contain two alphabet, one is called A and B, A comma B. It means जब हम इस पे clean star रन कर रहे हैं तो it means कि this bracket having A and B, तो this bracket repeat itself with the infinite time. तो maybe जब first time ये bracket चलेगा तो यहाँ से A आ जाए, जब next time ये bracket चलेगा तो B आ जाए, थर्ड टाइम ब्रैकेट चलेगा तो फिर बी आ जाए, फोर्थ टाइम चलेगा तो फिर ए आ जाए. तो मे बी ए बी तो ए बी इज अ स्ट्रिंग जो कि यहां से बन सकता है ए डबल बी ए, यानी ए कॉमा बी होल स्टार. तो एक ऐसी आपके पास, अभी हम बाद में बात करेंगे इसकी, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन हो गई जो कि ए और बी के तमाम स्ट्रिंग्स को पूरा कर रही है. यानी इससे ए और बी के इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बन सकते हैं ऑफ एनी लेंथ ऑफ एनी फॉर्म. तो ए समझाने का इस वक्त मकसद ये था कि जब हम किसी भी सेट पर क्लीन स्टार या पॉजिटिव क्लोजर की ऑपरेशन रन करते हैं, इसका मतलब है वो सेट अपने आप को रिपीट कर सकता है इनफाइनाइट टाइम. द डिफरेंस इज दैट के क्लीन स्टार हैविंग द नल इन इट मस्ट, और जो पॉजिटिव क्लोजर है उसमें नल अलाउड नहीं है. ये दोनों रिकर्सिव फंक्शन है ना, दोनों रिकर्सिव के तौर पे यूज होंगे. बाकी आपके पास जो है, लेकिन जो ये ऑपरेशन है इन दोनों में वो फर्क ये था कि आपके पास तो ये चार तरह की हमने लैंग्वेज ऑपरेशन की बात की, एक यूनियन, एक कॉन्कैटिनेशन, और इसके बाद हमने क्लीन स्टार और फिर पॉजिटिव क्लोजर. तो इसकी जो है वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो ये चैप्टर 2 में था हमारे पास, जो टेक्स्ट बुक थी मैंने लिखवाई थी आपको, डेनाइल आई कोहन की कंप्यूटर थ्योरी. बुक का दोबारा बता दीजिएगा. कंप्यूटर थ्योरी बाय डेनाइल आई कोहन की जो किताब है वो, उसका सेकंड चैप्टर ये था जो हमने अभी बात की ये सारी लैंग्वेजेस का. तो उसकी एक्सरसाइजेस को आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हम उसको वो बेसिक सी एक्सरसाइजेस हैं कि आपके पास सेट दिया हुआ है, उसमें कहा है कि भी हमें वर्ड्स बनाने हैं जिनकी लेंथ 4 वाले वर्ड बनाने हैं, फिर लेंथ 5 वाले वर्ड्स बनाने हैं, फिर 5 6 वाले बनाने हैं,
फिर अगर हमने ये पूछा है कि कोई स्ट्रिंग जो है वो किसी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट उस वक्त होगा जब आपके पास वो उसके इनपुट अल्फाबेट से मिलके बना होगा। अगर इनपुट अल्फाबेट में ही कोई अल्फाबेट नहीं है तो वो डेफिनेटली, अब इनपुट अल्फाबेट में अगर 0 1 है और आप स्ट्रिंग में 2 भी यूज कर लो तो वो नहीं हो सकता। तो इस हमने देखना है कि वो आपके पास क्या चीज है। अब फॉर एग्जांपल एक मैं छोटी सी एग्जांपल ये ले लूं कि For example, we have the input alphabet is AA, B. ये हमारे पास एक इनपुट अल्फाबेट है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक लैंग्वेज, हमें वो लैंग्वेज लिखनी है या हमें स्ट्रिंग्स बताने हैं कि जिनकी जो लेंथ है वो हमें वो तमाम स्ट्रिंग्स लिखने हैं जिनकी लेंथ जो है आपके पास जो है वो 5 हो। तो अब लेंथ 5 वाले वर्ड्स हमें लिखने हैं। अब लेंथ 5 वाले वर्ड इसमें क्या हो सकते हैं? लाइक इसमें आप बताएं मुझे क्या होंगे। डबल ए बी डबल ए बी डबल ए और डबल ए बी डबल ए बी बी। अच्छा, क्या इसमें ये हो सकता है ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए डबल बी? ट्रिपल ए डबल बी नहीं। हाँ, ट्रिपल ए डबल। देखें, इसमें समझाने वाली बात ये थी, इसलिए मैंने लिखा था कि क्योंकि यहाँ पे जो डबल ए है, डबल ए यहाँ पे एक सिंगल इनपुट अल्फाबेट के तौर पे ट्रीट हो रहा है। इसका मतलब है कि ए जब भी कॉल होगा तो वो इन क्लम्स होगा, इन कॉन्जिक्यूटिव होगा। ए जब भी कॉल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्लम्स या कॉन्जिक्यूटिव होगा। ए जो है वो सेपरेटली नहीं आ सकता, ए सिंगल लेटर के तौर पे नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो आपने एज अ सिंगल इनपुट अल्फाबेट जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लेंथ के फंक्शन में डबल ए को इनपुट करेंगे तो वो रिटर्न में 2 ही मिलेगा, यानी डबल ए की लेंथ जो है वो 2 काउंट होगी। लेकिन डबल ए जो है वो इस वक्त सिंगल इनपुट अल्फाबेट के तौर पे ट्रीट हो रहा है। यानी कि अगर हमें 5 लेंथ वाले स्ट्रिंग लिखने हैं तो हमारे पास जो है 5 टाइम ए नहीं हो सकता, बिकॉज सिंगल ए अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है अलाउड? क्योंकि सिंगल ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट है ही नहीं, क्योंकि ए जो है आपके पास सिंगल नेचर में नहीं आ सकता। ए जब भी आएगा वो डबल में आएगा, यानी डबल ए 4 टाइम ए 6 टाइम ए, चाहे वो एक साथ हो या वो अलग अलग हो। तो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स हो सकते हैं लाइक 5 टाइम बी, इसमें हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है ट्रिपल बी डबल ए, इसमें स्ट्रिंग हो सकता है बी डबल ए, इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग हो सकता है डबल ए बी, इसमें हो सकता है डबल ए बी डबल ए, इसमें हो सकता है आपके पास और क्या रह गया? सर हो गए, हो गए ना। तो इस तरह के से अब यानी समझाने वाली बात यहाँ ये थी कि क्योंकि डबल ए यहाँ पे सिंगल इनपुट अल्फाबेट के तौर पे है, लेकिन जब हम उसकी लेंथ लेंगे तो लेंथ में वो 2 हमें रिटर्न करेगा। यानी ए जब भी रन होगा वो क्लम्स या कॉन्जिक्यूटिव नेचर में रन होगा, ए सिंगल के तौर पे नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, another concept is called the third chapter जो इस बुक का है, वो भी बहुत बेसिक्स का चैप्टर है, उसको हम कहते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन। सो रिकर्सिव डेफिनेशन, तो जैसे रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं? जो अपने आप को रिपीट करते हैं, उन्हें हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जी सर मगरिब हो गई है ये वाला। अच्छा, मगरिब, चलिए फिर इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो आपने ये करना ये है कि so today we have end with the chapter number 2, start with the chapter 3 and 4 we will discuss in the next class. नेक्स्ट क्लास का जो टाइम होगा वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। यस सर, इस बुक में से हम कितने चैप्टर्स जो हैं करेंगे?
कितने करेंगे कोई एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, 12-13 चैप्टर तो पढ़ेंगे। अच्छा सर, मैंने एक ईमेल सेंड की थी आपको। वो ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। बाकी आप असाइनमेंट से रिलेटेड जो है वो या तो सीआर को वो भेज दें, और या फिर मुझे अलग अलग भेजना चाहें, लेकिन बेहतर है कि सीआर को भेज दें तो मुझे एक साथ भेज देंगे। बाकी जिसने मुझे भेज दी है वो मैं रिप्लाई कर दूंगा। सर परमिशन चाहिए थी सर, उसमें ईमेल में मैंने लिख दिया था। जी मैं देख लेता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।